السلام علیکم وائس نیوز کے ساتھ میں ہوں فرحان اکبر۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور خبر شامل کریں گے سرگودا سے، جہاں پر سرگودا کی تحصیل صاحباد میں محرم الحرام کے دوران قیام امن کے لیے ممبران امن کمیٹی، علماء کرام اور ماتمی جلوس و مجلس کی منتظمین بھرپور تعاون کرے۔ محرم کے ایام میں مشاورت سے سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار اسسٹنٹ کمشنر صاحبال محمد نزاز سلیری کی زیر صدارت امن کمیٹی کے اجلاس میں انتظامات کو حتمی شکل دینے کی میٹنگ میں ہوا۔ اے سی صاحبال محمد نواز، ڈی ایس پی اکنواز میکن، ممبران امن کمیٹی خطاب کرتے ہوئے کیا عقائد کی پاسداری اور رواداری بھائی چارے کو پروان چڑھایا جائے گا۔ تحصیل امن کمیٹی صاحبال کی مثالی ہم آہنگی اور عملی کارکردگی قابل تعریف ہے۔ تمام متعلقہ سرکاری محکمے اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائیں گی۔ کسی بھی شرپسند عناصر کو گڑبڑ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ تحصیل ساہیوال میں تھانہ زرکھوالہ کی حدود میں معصوم بچوں کو تشدد کا نشانہ بنانے والے 5 نامزد اور 5 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ 52 افراد نے مقامی دربار پر منعقدہ عرس کے موقع پر معصوم بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا، جبکہ بچوں کو بچانے کے لیے آگے بڑھنے والے جوانوں کو بھی 52 افراد کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ شفیق نامی نوجوان نواحی قصبہ حویلی نتھو کا رہائشی ہے، جو تشدد کا شکار ہونے والے بچوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے 52 افراد کے تشدد کا شکار ہو گیا۔ 52 افراد نوجوان پر ڈنڈے اور سوٹے برساتے رہے۔ بعض ازاں تشدد کی ویڈیو وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ویڈیو وائرل ہونے پر علاقے میں خوف و ہراس کی فضا پیدا ہو گئی۔ 52 افراد کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بننے والے بچوں کی عمریں 13 اور 15 سال ہیں، جبکہ 5 نامزد اور نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ تھانہ ترکھا والے میں بچوں کے والد کی مدعیت میں درج کر دیا گیا ہے۔ ایل ڈبلیو ایم سی کی جانب سے شہر بھر میں صفائی آپریشن بلا تعطیل جاری ہے۔ چائنا سکیم شالیمار ٹاؤن میں خصوصی صفائی ٹیمیں تعینات۔ ماتو لال حسین دربار قبرستان اور اس سے ملحقہ راستوں پر صفائی ستھرائی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ لاہور نیلم سینما کے کمرشل مارکیٹ، کوٹلی پیر عبدالرحمان جمیل پارک، جانی پورہ محمد علی شادی ہال کے اطراف خصوصی صفائی آپریشن مکمل کر دیا گیا ہے۔ 800 سے زائد ورکرز، 140 سے زائد آپریشن گاڑیاں شالیمار ٹاؤن کے خصوصی صفائی آپریشن پر تعینات۔ شالیمار ٹاؤن میں موجود 26 کوڑے کے پوائنٹس، 15 ہاٹ اسپاٹ ایریاز کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ سی ای او ڈبلیو ایم سی ایم بابر صاحب دین کا مزید کہنا تھا کہ فضل پورہ ویسٹ انکلوزر اور چائنا اسکیم عارضی کلیکشن پوائنٹ کو روزانہ کی بنیاد پر زیرو ویسٹ کیا جا رہا ہے۔ اربن یونین کونسل کے ساتھ ساتھ دیہی یونین کونسل بھی صفائی کے خصوصی انتظامات کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وژن سترہ پنجاب کے تحت لاہور کے تمام 9 ٹاؤنز میں مرحلہ وار خصوصی صفائی ایکٹیویٹیز کا سلسلہ جاری ہے۔ دیہی یونین کونسل میں ٹریکٹر ٹرالیز کی مدد سے اوپن پلاٹس کی کلیئرنس یقینی بنائی جا رہی ہے۔ صفائی سے متعلق شکایات کے ازالے یا تجاویز کے ایل ڈبلیو ایم سی کی ہیلپ لائن 1139 پر رابطہ کریں یا سوشل میڈیا کا استعمال کریں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اسسٹنٹ کمشنر چونیا طلحہ انور کا ٹی ایچ کیو چونیا کا اچانک دورہ۔ صفائی ستھرائی کی ناقص صورتحال، ڈاکٹرز کی بغیر اجازت چھٹی پر برہمی کا اظہار۔ ماہر امراض جلد سے رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر چونیا طلحہ انور کا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کا اچانک دورہ۔ واش روم خستہ حالی کا شکار، صفائی ستھرائی کی حالت قابل ذکر نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کیا۔ 3 ڈاکٹرز بغیر اجازت چھٹی پر پائے گئے۔ ماہر امراض جلد سے وضاحت طلب کر لی گئی ہے۔ دانتوں کا ایکس رے کام نہ کر رہا تھا، ایم ایس چونیا سے وضاحتی رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے۔ ریاست پاکستان میں ایک اور اقلیتی کمزور مسیحی برادری کی کم عمر 14 سالہ نابالغ لڑکی کا اسلام کی آڑ لے کر اغوا اور نکاح تھانہ کھنہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تھانہ کھنہ کے علاقہ ضیاء مسجد کی حدود میں ایک مسیحی برادری کی لڑکی جس کا نام علینا ہے۔ تھانہ کھنہ کے علاقہ ضیاء مسجد کی حدود سے ایک مسیحی برادری لڑکی جس کا نام علینا ہے، سرکاری ریکارڈ کے مطابق جو اغوا کے بعد ذرائع کے مطابق معلوم ہوا ہے، زبردستی اسلام قبول کروا کے کم عمر نابالغ علینا نامی بچی کا اغوا کر کے زبردستی ملزم نے اپنے پاس قید کر رکھا ہے، جس کی ایف آئی آر نمبر 10/16/2024 مرخہ 25 جون جو تھانہ کھنہ اسلام آباد میں درج تو ہو گئی، لیکن 5 دن گزرنے کے باوجود نامعلوم اور نہ تو ملزم والدین کو پولیس بچی برآمد کر کے دے سکی اور نہ ہی اب تک ملزم گرفتار ہو سکے۔ بچی کے والدین نے آئی جی اسلام آباد اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ آخر اقلیت جیسے کمزور طبقہ کو ہی انصاف کی فراہمی میں اتنا ٹائم کیوں لگ جاتا ہے۔
اس واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور آئی جی اسلام آباد اور حکومت سے اور وزیر داخلہ محسن نقوی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ 14 سال کی کم عمر نابالغ مسیحی بچی کو فوری والدین کے حوالے کیا جائے اور ملزمان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ جیکوباد کی تحصیل جھول میں پورحد عبدالوہاب مختلف بیماری میں منتقل ہو چکا ہے، جبکہ علاج کے لیے کوئی طاقت نہیں۔ مدد کے لیے سول سوسائٹی اور سوشل ورکر نے بھرپور مدد کی ہے۔ جیکوباد کی تحصیل جھول میں فلاحی تنظیم مددگار فاؤنڈیشن کی جانب سے جھول شہریوں نے بھرپور تعاون کی، جس میں سول سوسائٹی استاد ارباب علی گولو، سوشل ورکر لال محمد بروڑو، سوشل ورکر سنو خان بروڑو، سماجی اغوان ڈاکٹر گرمک اداس اور شہریوں نے بھرپور تعاون کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر محکمہ خوراک کا صوبہ بھر میں کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 24 گھنٹوں میں 5 اضلاع کی 84 فلور ملز کی چیکنگ اور 31 کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ راولپنڈی ڈویل میں 53، لاہور 12، ساہیوال 9، ڈی جی خان 8 اور فیصل آباد میں 4 فلور ملز کی چیکنگ کی گئی ہے۔ لاہور ڈویژن کی 6، راولپنڈی کی 4، فیصل آباد کی 4 اور ساہیوال 9 اور ڈی جی خان میں 8 فلور ملز کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ 3 روز میں تسلی بخش جواب جمع نہ کروانے پر سخت ایکشن لیا جائے گا۔ ساہیوال ڈویژن کی 4 جبکہ ڈی جی خان کی 8 فلور ملز کے لائسنس معطل کر دیے گئے ہیں۔ لاہور، راولپنڈی اور ساہیوال میں 4,70,000 کے جرمانے عائد کر دیے گئے ہیں۔ مصنوعی قیمتیں بڑھانے، ریکارڈ میں رد و بدل اور ناقص انتظامات پر کارروائی کی گئی۔ مارکیٹ میں زائد نرخوں پر آٹے کی فروخت اور تناسب میں کمی پر نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ کسی بھی سطح پر مہنگے داموں آٹے کی فروخت پر سخت کریک ڈاؤن جاری کیا جائے گا۔ تمام اضلاع کے آٹا ڈیلرز اور ریٹیلر شاپس کی چیکنگ کا عمل تیز کر دیا گیا ہے۔ آج عام مارکیٹ میں آٹے کے نرخوں میں واضح کمی آئی ہے۔ اے ایس پی سرکل کوٹ مومن محمد فہیم کلوڈ کی زیر نگرانی تھانہ کوٹ مومن پولیس کی بڑی کامیاب کارروائی۔ تھانہ کوٹ مومن کے حدود معظم مواد سے ملنے والی نامعلوم ڈیڈ باڈی کا معمہ حل ہو گیا ہے۔ عدم قتل کے مقدمہ میں تھانہ کوٹ مومن پولیس نے ملزم کو 2 دنوں میں گرفتار کر لیا۔ تھانہ کوٹ مومن پولیس کو ایک نامعلوم خاتون کی ڈیڈ باڈی ملی، جس کو قتل کر کے بانسوں میں پھینک دیا گیا تھا۔ ڈیڈ باڈی پرانی ہونے کی وجہ سے شناخت بھی ممکن نہ تھی۔ کوٹ مومن پولیس نے ڈیڈ باڈی کی شناخت کرنا شروع کر دیا ہے، جس کی شناخت نازیہ کے نام سے ہوئی ہے۔ مزید تفتیش پر معلوم ہوا ہے کہ مقتولہ نازیہ کو اس کے ماموں اجاز نے غیرت کے نام پر قتل کر کے پھینک دیا تھا۔ پولیس نے بہترین تفتیش اور مؤثر حکمت عملی سے ملزم کو 2 دنوں میں ہی ٹریس کر کے گرفتار کر لیا ہے۔ اس موقع پر ایس ایچ او تھانہ کوٹ مومن کا کہنا تھا کہ ملزم کو قانون کے مطابق سزا دلوائی جائے گی۔ جتوئی میں جعلی فنگر پرنٹس مافیا بے لگام، تھانہ بیٹ میر ہزار خان کے حدود میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مستحقین میں امدادی قسط جاری ہوتے ہی فراڈیا گینگ متحرک ہو گیا۔ جعلساز گروہ جعل فنگر لگا کر متعدد مستحق خواتین کی رقم ہڑپ کر کے کروڑوں کا فراڈ کرتے ہیں۔ رقم ہڑپنے والا گروپ تو وہ پکڑا گیا۔ پولیس تھانہ بیٹ میں ہزار نے متاثرہ خاتون ذکیہ بی بی کی نشاندہی پر موقع سے فراڈیا گینگ گرفتار کر لی ہے۔ ملزمان سلیکون سے بنائے گئے جعلی فنگر پرنٹس لگا کر خواتین کی امدادی رقم میں خرد برد کرتے تھے۔ فراڈیا گینگ کے سرغنہ سمیت 3 نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ملزمان عرصہ دراز سے فراڈ میں ملوث ہیں، کروڑوں روپے کا فراڈ بھی کر چکے ہیں۔ بڑے پیمانے پر فراڈ میں ایچ بی ایل کانٹیکٹ کا عملہ بھی ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ متاثرہ خاتون ذکیہ بی بی کی درخواست پر کارروائی کی گئی ہے۔ مقدمے کا اندراج اسسٹنٹ ڈائریکٹر بی ایس آئی پی پروگرام جتوئی کی مدیریت میں کیا گیا ہے۔ پولیس تھانہ بیٹ میر ہزار نے 4 فراڈیوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے۔ متعدد بار فراڈیا گینگ پکڑا جاتا ہے، مگر مؤثر کارروائی نہ ہونے پر دوسرے دن پھر سے وہی فراڈ کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ فیصل آباد میں تھانہ گلبرگ کے علاقہ نرولا روڈ گوبت پورہ میں بارش کی وجہ سے ٹی آر گارڈر کی خستہ حال گھر کی چھت گر گئی ہے۔ فیصل آباد میں صبح سویرے ہونے والی شدید بارش سے خستہ حال چھت گر گئی ہے۔ ریسکیو ٹیم نے بروقت موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائی شروع کر دی۔ 9 ماہ کی بچی مدیحہ فاطمہ دختر شہزاد ملبے تلے دب کر جاں بحق ہو گئی۔ ریسکیو ٹیم نے بچی کو ملبے سے نکال کر لواحقین کے حوالے کر دیا ہے۔ تازیہ والے سے خبر دی، جہاں بارش نے شہر اور مضافات میں جل تھل ایک کر دیا ہے۔ بارش برسنے سے موسم خوشگوار، جبکہ درجہ حرارت میں بھی کمی ہو گئی ہے۔ دوسری جانب بارش نے میونسپل کمیٹی انتظامیہ کی کارکردگی کا بھی پول کھول دیا۔ تازیہ والا شہر اور مضافات میں گرج چمک سے بارش اور ٹھنڈی ہوا سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ بارش سے درجہ حرارت میں بھی نمایاں کمی ہو گئی۔ بارشوں کے الرٹ کے باوجود میونسپل انتظامیہ نے سیوریج سسٹم کو بہتر بنانے کے کوئی اقدامات نہ کیے۔
بارش برسنے سے شہر بھر کی گلیاں سڑکیں تالاب میں تبدیل ہو گئی۔ تھانہ روڈ، میونسپل کمیٹی روڈ، گرلز اسکول روڈ، ماہی چوک کے مضافاتی گلیوں میں بارشی پانی جمع ہو گیا۔ بارشوں کے لڑ سے قبل شہریوں نے متعدد بار میونسپل افسران کو سیوریج سسٹم بہتر بنانے کی درخواست کی تھی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ میونسپل افسران نے سیوریج نالوں کی صفائی کے حوالے سے کوئی اقدامات نہ کیے۔ قبل سیوریج کا پانی شہر بھر کی متعدد گلیوں میں ہمہ وقت کھڑا رہتا ہے، اب بارشی پانی بھی سیوریج نہ چلنے سے یوں ہی رہے گا۔ بارشی اور سیوریج پانی نہ نکالنے کی صورت میں میونسپل کمیٹی بازاروں میں کشتیوں کا انتظام کرتے، کمشنر ڈپٹی کمشنر فیصل آباد میونسپل انتظامیہ کی غفلت پر نوٹس لے۔ ملک بھر کی طرح صادقآباد میں بھی پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن پاکستان کی جانب سے ہڑتال جاری ہے۔ تحصیل صادقآباد کے تمام پیٹرول پمپ بند، شہریوں اور مسافروں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ الطاف الہی میڈ سے جو پمپ پر موجود ہیں۔ جی الطاف، آگاہ کیجیے گا۔ جی، ملک بھر کی طرح صادقآباد میں بھی پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کی کال پر ہڑتال جاری ہے۔ تحصیل بار میں تمام پیٹرول پمپ جو ہیں وہ بند ہیں، جن کی جو سیل ہے وہ بھی بند ہے۔ جب اس حوالے سے جب ہماری پیٹرول پمپ مالکان سے بات ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ ڈیلر ایسوسی ایشن کے چیئرمین کی طرف سے ہمیں جو کال آئی تھی اس کی وجہ سے ہم جو ہے نا ہڑتال جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جو حکومت کی طرف سے اضافی ٹیکس عائد کیے گئے ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے یہ ہڑتال جاری ہے۔ اس حوالے سے جب ہمارے شہریوں سے بات ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ ہم فیملیز کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں لیکن ہمارا پیٹرول ختم ہو گیا، ہمیں کہیں بھی پیٹرول پمپ پر جو پیٹرول نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے ہمیں جو مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور ان کے جو ہے نا جائز مطالبات مانے جائیں اور جو پیٹرول کی بندش ہے اس کو ختم کیا جائے تاکہ ہماری جو مشکلات ہیں وہ آسان ہو سکیں۔ جی الطاف، بہت شکریہ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ حکومت کی جانب سے بجلی بمباری پر جماعت اسلامی کی پریس کانفرنس۔ بجلی کی بمباری پر عوام شدید پریشان، حکومت نے وعدہ وفا نہ کیا۔ بجلی کے نرخوں میں شدید اضافے کی وجہ سے جلسے کا اعلان اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں چنور سے ہمارے نمائندہ کیسر وینس۔ جی کیسر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملک میں جو ہے حکومت کی جانب سے جو ہے بجلی بمباری جو ہے وہ جاری ہے، جس کی وجہ سے عوام کے اندر شدید غم و غصے کی لہر پائی جا رہی ہے، جبکہ ساتھ ساتھ سیاسی و سماجی جماعتیں ہیں وہ بھی سراپا احتجاج بن چکی ہیں۔ جبکہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جماعت اسلامی کے رہنما چودھری اسلام، جو کہ بجلی بمباری پر جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ آئیے جانتے ہیں کس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ جی آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ حکومت میں جو دونوں بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم 300 فری دیں گے، کسی نے کہا تھا کہ ہم 200 فری دیں گے، لیکن آج بھی جو کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اس میں بنیادی ٹیرف میں 6 روپے کا اضافہ کر دیا، بجلی کے بم گرائے، اور پھر اسی طرح آئی پی پیز نے جو بجلی بنتی نہیں ہے اس کے بھی قیمت غریب لوگ ادا کرتے ہیں۔ پھر عجیب سی صورتحال ہے کہ میٹر کے اوپر بھی یعنی 200 جو یونٹ ہوگا اس کے اوپر ایک ریٹ ہے، 201 ہو جائے گا تو اس کے اوپر عجیب سا ریٹ ہے، یعنی اگر 2000 ہے تو پھر 9000 بل ہو جائے گا۔ اور یہ اس طرح کی لوٹ مار، پہلے 17 ٹیکسز موجود ہیں، غریب لوگ روٹی سے تنگ ہے، تعلیم نہیں ہے، ہیلتھ نہیں ہے، لوگ بیچارے خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنی جائیدادیں بیچ کے بل دے رہے ہیں، اور موجودہ حکومت تو ناکام ہو گئی ہے۔ اور اس حکومت کے خلاف 12 جولائی کو امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں اسلام آباد کے اندر عظیم الشان اور تاریخی دھرنا ہوگا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ذاتی نہیں ہے، کسی پارٹی کا کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جی آپ لوگوں کو ریلیف دے، اور اس کے لیے انشاءاللہ چنیوٹ سے بھی سینکڑوں لوگ اس دھرنے میں شامل ہوں گے۔ جی بالکل، سیاسی جماعتی رہنما کا کہنا ہے کہ جو پارٹی ہیں انہیں وعدہ وفا نہیں کیا، جبکہ آئے روز جو ہے بجلی کے نرخوں کے اندر اضافہ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے عام طبقہ بالکل چکی کے اندر پس کر رہ گیا۔ جبکہ جماعت اسلامی کے رہنما کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے دھرنا وہ دیا جائے گا۔ جی کیسر، بہت شکریہ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی مونسون بارشوں کے معمول سے زیادہ برسنے پر جاری کی گئی ہدایت کو پرسور انتظامیہ نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا ہے۔ شہر کے چھوٹے بڑے سیوریج نالوں سمیت شہری آبادی کے قریب واقع نالہ حسرہ کی صفائی نہ کی جا سکی، جس کے باعث ممکنہ طور پر سیلابی صورتحال کے بعد شہری آبادی اور زرعی زمینوں کو نقصان کا شدید خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ نالہ حسرہ کی صورتحال پر مزید جانے کے پرسور سے اپنے نمائندہ اعجاز احمد کھوکھر سے۔ جی بالکل، حالیہ مونسون کی بارشوں کی معمول سے زیادہ پیش گوئی کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے کسی بھی ممکنہ سیلاب کے شہریوں کے بچاؤ کے لیے ندی نالوں کی بال صفائی کے لیے دی گئی ہدایات کو پسور انتظامیہ کی جانب سے بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ پسور کے ملحقہ شہری آبادی کے قریب نالہ حسری کی صفائی اور دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث
नाला हसरी अब तक सूरत हाल का शिकार है। नाला हसरी में सफाई ना होने और किनारों पर बंद तमीर ना होने के बायस सैकड़ों एकड़ पर मुश्तमिल जहां दहान और दीगर फसलें मुतासर हो सकती हैं। वहीं पर नाला हसरी के ज़ेरे आब आने से करीबी आबादियों भी बुरी तरह मुतासर होने का खदशा पैदा हो चुका है। जबकि अगरचे बात की जाए छोटे बड़े दीगर सीवरेज नालों की, इनमें भी तहाल किसी किस्म का काम शुरू नहीं किया जा सका, तो दूसरी तरफ नाला डेक पर बनाए गए बंद की सूरत हाल भी तशवीशनाक हद तक खतरनाक दिखाई देती है, जहां पर करीबी आबादियों को सैलाबी पानी से बचाव के लिए इकदाम बिल्कुल नहीं किए जा रहे, जिसके बायस गुज़श्ता सालों की तरह करीबी दही आबादियों खैरे, मेहंदीपुर, ऊंचा पहाड़न, दौलतपुर समेत दीगर दर्जनों देहात, सैकड़ों हज़ारों एकड़ ज़री ज़मीनों को शदीद नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। जी जड़वाना थाना सिटी के अंदर से फरार होने वाले का मामला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। एसपी जड़वाला ने वाकया आबिद हुसैन जफर का नोटिस लेते हुए बर वक्त टीमें तश्कील दी। सिटी जड़वाला को फरार SHO ने और मुलजिम का टास्क दिया है। थाना सिटी जड़वाला फरार मुलजिम को जदीद फ़नी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार मुलजिम के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। SHO जड़वाला की SP आबिद हुसैन जफर सिटी को शाबाश और आइंदा के लिए सख्त इंतजाम करने की हिदायत की गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गरीब खवातीन को रकूम की अदायगी का सिलसिला जारी है। गवर्नमेंट हाई स्कूल खानगढ़ में कायम कैंप साइट पर खवातीन को की मुश्किलात का सामना है। जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदा मोहम्मद शहजाद असलम से। जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गरीब और मुस्तहिकिन ख़वातीन को रकूम की अदायगी का सिलसिला जारी है। ख़वातीन जो है वो कैंप साइट पर जाकर बायोमेट्रिक के ज़रिए अपनी रकम निकलवा सकती है। मैं इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ कि इस बार कटौती की शिकायत को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने रिटेलर शॉप के बजाय कैंप साइट पर जो रकूम की फरहमी का सिलसिला वो शुरू कर दिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ के नवाही शहर खानगढ़ में एक कैंप साइट पर, जहाँ पर हुकूमत की जानिब से कैंप लगाया गया है, जहाँ पर जाकर ख़वातीन बायोमेट्रिक के ज़रिए जो अपनी रकूम है वो हासिल कर सकती है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि शदीद गर्मी और हब्स की वजह से ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो कैंप साइट पर मौजूद है। शदीद गर्मी और हब्स की वजह से ख़वातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कैंप साइट पर रिटेलर की तादाद यानी कि डिवाइस होल्डर की तादाद बहुत ही कम है, जिससे ख़वातीन जो है ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग ख़वातीन, हमला ख़वातीन और जो बच्चों वाली ख़वातीन हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा इंतज़ामात के हवाले से अगर बात की जाए तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कैंप साइट पर कोई खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए, ना ही ख़वातीन के बैठने के लिए कोई कुर्सियों का इंतजाम किया गया और ना ही ठंडे पानी का इंतजाम किया गया। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो पुलिस का एक कांस्टेबल भी सिक्योरिटी के पर तैनात नहीं है यहाँ कैंप साइट पर। जो रिटेलर हजरात है, जो डिवाइस होल्डर हजरात है, उन्होंने शिकायत किया कि हमें पैसे निकलवाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। जो सेंटर पे आई ख़वातीन है उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि खुदारा जो कैंप साइट पर जो डिवाइस होल्डर है उनकी तादाद को बढ़ाया जाए और जो गर्मी और हब से बचने के लिए बैठने का इंतज़ाम किया जाए और ठंडे पानी का इंतज़ाम किया जाए, ताकि वो जो अपनी रकूम है आसानी से हासिल कर सकें। जी SDO सिटी शाहजहान लुंड मोहम्मद जवाद आलम के मुतैद में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गुज़श्ता रोज़ होने वाला अफसोसनाक वाक़या जिसमें SDO साहब पर फायरिंग की गई, जिससे मौजूदा तौर पर महफूज रहे। SDO जो का खुद एक मुलाजिम है, अफसरान वाला के मातहत है। अफसरान के हुक्म की तामील करना इनकी ड्यूटी है। बिजली चोरी को रोकना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। फिर किसी मुलाजिम और नौकरी करने वाले शख्स पर धौंस जमाना, इस पर फायरिंग करना सरासर ज़्यादती है और बलोच रिवायत के भी खिलाफत है। SHO थाना काला ने मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जेल में आइस बचाने की कोशिश नाकाम, औरत समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जेल में आइस बचाने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। औरत समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। जेल इंतजामिया के मुताबिक मुलजिमान जेल में कैद हाकिम अली को शैम्पू की बोतल में मंशात पहुँचाना चाहते थे। जेल अमला ने सामान की तलाशी लेने पर आइस की सप्लाई को नाकाम बना दिया है। मुलजिमान देगर सामान के साथ शैम्पू की बोतल में
आइस पैक करके लाए थे। अमला जेल के मुताबिक दरखास्त पर तीनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान में शमाइला अजान अली और मोहम्मद अशर शामिल हैं। थाना सिविल लाइन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। कसूर डीपीओ बदले, बढ़ती बदले, बिल्डिंग बदली, लेकिन पंजाब पुलिस की रिश्वत खोरी के अंदाज न बदले। चूनिया पुलिस के खिलाफ स्नैपचैकिंग की आड़ में लूटमार की शिकायत में दिन ब दिन इजाफा। मुतासरा स्टूडेंट की जानिब से DSP चूनिया को दरखास्त दे दी गई है। चूनिया थाना सदर पुलिस के मुहावजों की बजाय गब्बर सिंह का किरदार अदा करने लगी है। बेगुनाह स्टूडेंट को बिलावजह तशद्दुद का निशाना बनाकर जेब से रकम भी निकाल कर ले उड़े। जबान खोलने पर नाजायज मुकदमात में फंसाने की धमकी देकर खामोश रहने का हुक्म देकर रफू चक्कर हो गए। समाजी और सियासी शख्सियात ने DPO कसूर को दी गई दरखास्त पर इंक्वायरी करवाकर पुलिस वर्दी को दागदार करवाने वाली काली भीड़ों को इबरत का निशाना बनाने का मुतालबा किया है। तौसा के नवाही कस्बा टीटरा के करीब बेज़बान जानवर पर जुल्म। तौसा शरीफ के नवाही कस्बा टीटरा के करीब बेज़बान जानवर पर जुल्म। जानवर मालिक से दुकान पर मोटरसाइकिल सवारों ने बेज़ुबान जानवर पर मोटरसाइकिल दे मारा। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद रफ़ीक लशारी ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मैं अपनी ऊँटनियों के साथ हेड बलाचनानी के करीब मौजूद था कि मोहम्मद रमज़ान और ज़ियाउर रहमान समेत तकरीबन 4 अफराद जो कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे, आते ही मेरे ऊपर हमलावर हो गए। मुझे ज़दकोब किया और मेरी ऊँटनी के बच्चे पर मोटरसाइकिल दे मारा, जिससे मेरी ऊँटनी के बच्चे की टांग टूट गई है। इसी असना में मजीद तकरीबन 10 अफराद भी आ गए और मेरे जानवर को रोक दिया और तकरीबन 40 मिनट तक यरगमाल बनाए रखा। लातों मुक्कों से तशद्दुद भी करते रहे। मकामी पुलिस थाना रीचरा को इतला की, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर मेरी जान बख्शी कराई। जख्मी ऊँटनी के बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। इन्होंने मकामी इंतजामिया और SHO थाना रीचरा पुलिस से मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। जब इस सिलसिला में दूसरे फरीक से राब्ता किया गया तो इनका कहना था कि हमारा एक नौजवान भी जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मकामी पुलिस थाना रीचरा मौका पर पहुंचकर इब्तदाई कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। तहसील जड़ावाला मंडी बचियाना नौचक के करीब मुसाफिर को कोस्टर उलट गई है। मुतअद्दिद मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। हादसे के नतीजे में 12 मुसाफिर जख्मी हो गए। इतला मिलने पर रेस्क्यू टीम ने बरवक्त मौके पर पहुंचकर जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक टाई राड टूट जाने की वजह से कोस्टर बेकाबू होकर उलट गई। रेस्क्यू टीम ने 9 शदीद जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ावाला मुंतकिल कर दिया है। कोस्टर ननकाना साहब से जड़ावाला की तरफ आ रही थी, जिसको नौचक के करीब हादसा पेश आया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रावलपिंडी के इलाका थाना मंदरे में मियां बीवी के कत्ल का मामला। CPO सैयद खालिद हमदानी का नोटिस। SP सदर मोहम्मद नबील खोखर को फौरी मौका पर पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। थाना मंदरे के इलाका में मियां बीवी के कत्ल का मामला। CPO सैयद खालिद हुसैन हमदानी ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। SP सदर को मौका पर पहुंचने की, जिस पर SP सदर फौरी नफरी के हमरा थाना मंदरे के दूरचक दौलत पहुंच गए हैं। मियां बीवी के कत्ल की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग करके रिटायर्ड स्पीकर FIA मजहर हुसैन और इसकी बीवी गौसिया बीबी को कत्ल कर दिया है। मौके से शवाहिद इकट्ठी किए जा रहे हैं। वाक़े की तमाम जावियों पर तहकीकात जारी हैं। SP सदर मोहम्मद नबील खोखर ने वाक़े में मुलविस मुलजमान को जाकर जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। कानून हाथ में लेने वाले मुलजमान कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। बेसहारों का सहारा बन जाना तो अलग ही बात है, लेकिन किसी बूढ़े मजदूर और बुजुर्ग की दाद रसी करना, से अपने दस्ते बाजू पर उठाकर लाना, रवादारी और भाईचारे की एक अनोखी मिसाल काम करना है। सेंटर ASI स्कूल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ड्यूटी पर मौजूद नौजवान स्टैंड कंप्लेंट्स मॉनिटर फरहान अहमद ने सेंटर पर आई मजदूर और बुजुर्ग खातून को अपने हाथों से उठाकर खातून से जारी करदा इमदादी रकम को न सिर्फ निकाल कर दिया, बल्कि बाकी नौजवान नस्ल को भी एक मैसेज जारी कर दिया है कि वक्त गुजरने में ज़रा सी भी देर नहीं लगती। अहमदपुर शहर की हुकूमत से दी जाने वाली इमदादी रकम से वैसे तो लाखों ख़वातीन रोज़ाना के हिसाब से मुस्तफ़ीद हो रही हैं, लेकिन किसी हकदार और बुजुर्ग की दाद रसी करना और इसे हज़ारों के मजमे में रकम निकलवा कर देना किसी सदका जारिया से कम नहीं। सेंटर में आई बुजुर्ग और माजूर माँ ने ड्यूटी पर मौजूद रामदिल और नेक दिल ऑफिसर फरहान अहमद को ढेर सारी दुआओं से नवाजा। कंप्लेक्स ऑफिसर फरहान अहमद का कहना था कि बचपन से जवानी तक का सफ़र बुढ़ापे पर जाकर रुकता है। इस उम्र तक पहुँचने के लिए ज़रा सी भी देर नहीं लगती, लिहाजा बुजुर्ग का अदब और एहतराम हमारे बड़ों की रिवायत का हिस्सा है। अच्छे अमल से अच्छे इंसान की पहचान करवाते हैं।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बराए ख़वातीन में कंप्यूटर कोर्सेज और ब्यूटिशियन क्लासेस के सेकंड शिफ्ट का आगाज़ कर दिया गया है। ज़िला सदर मुस्लिम लीग नून शोबा ख़वातीन में साइमा रशीद एडवोकेट ने हमरा प्रिंसिपल मैडम शहजादा कौसर की सेकंड शिफ्ट की क्लासेस का दौरा कर दिया है। मज़ीद देखिए बिलाल खाली की रिपोर्ट में। गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बराए ख़वातीन में कंप्यूटर कोर्सेज और ब्यूटिशन क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया। ज़िले सदर मुस्लिम लीग नून शोबा ख़वातीन मिस साइमा रशीद एडवोकेट ने हमरा प्रिंसिपल अदारा हाजा मैडम शहजाना कौसर के सेकंड शिफ्ट की क्लासेस का दौरा किया। प्रिंसिपल ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक टेफ्टा के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाले अदारों में ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम याफ्ता और हुनरमंद बनाने के लिए 2 माह के शॉर्ट कोर्सेज का आगाज़ किया गया है। पहले मरहला पर कंप्यूटर कोर्सेज और ब्यूटिशियन क्लासेस का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। तालिबात की कसीर तादाद ने सेकंड शिफ्ट में दाखिले हासिल किए हैं। इस मौका पर मिस साइमा रशीद एडवोकेट ने तालिबात से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज की ख़वातीन अपने ख़ानदान की माशी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपना भरपूर हिस्सा डाल रही हैं। कंप्यूटर का इल्म तमाम शोबाजात में अहमियत इख्तियार कर चुका है। तालिबात को मियारी अदारों से कंप्यूटर कोर्सेज की तालीम हासिल करनी चाहिए, जिसके लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भरपूर इक़दामात किए हैं। ख़वातीन ब्यूटिशन कोर्स मुकम्मल करके अपने घर के किसी भी हिस्सा में अपना कारोबार शुरू कर सकती हैं। महदूद आमदनी वाले ख़ानदानों की बच्चियां मुख्तलिफ हुनर हासिल करके अपने घर के अफराद की माली मुआशी ज़रूरियात में भरपूर हिस्सा डाल सकती हैं। नारोवाल में नामालूम अफराद की सब इंस्पेक्टर मलिक अतीक अहमद पर फायरिंग, टांग में गोली लगने से शदीद जख्मी हो गए। सब इंस्पेक्टर अतीक अहमद किला कालर वाला थाला में ड्यूटी करके अपने गांव गंज हुसैन आबाद जा रहे थे कि नारोवाल नामालूम अफराद की सब इंस्पेक्टर मलिक अतीक अहमद पर फायरिंग कर दी गई है। टांग में गोली लगने से शदीद जख्मी हो गए। सब इंस्पेक्टर अतीक अहमद किला कालर वाला थाला में ड्यूटी करके अपने गांव गंज हुसैन आबाद जा रहे थे कि मां गांव के करीब नामालूम अफराद ने रास्ते में रोककर फायरिंग कर दी। पुलिस राय के मुताबिक जख्मी सब इंस्पेक्टर को तिब्बी इमदाद के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीम में भी तश्कील दे दी गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि उकाड़ा महबूब टाउन उकाड़ा में दुकानदार की 3.5 साल बच्ची के साथ जबरदस्ती ज्यादती थाना सदर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ज्यादती के दिफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। उकाड़ा महबूब टाउन के रिहायशी दुकानदार की 3.5 साल बच्ची के साथ जबरदस्ती ज्यादती। बच्ची राबिया करके करीब दुकान से चीज़ लेने के लिए गई थी। दुकानदार साहिद ने बच्ची को बरगलाया और इससे ज़बरदस्ती ज्यादती की। मुलजिम दुकानदार जाए वक़ूअत से फ़रार होने में कामयाब हो गया है। थाना सदर उकाड़ा पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुतासरा बच्ची के मामू मुर्शिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि बच्ची को तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही DPO तारिक अजीज सिंधु ने वक़ूअत का नोटिस ले लिया। SHO इंस्पेक्टर थाना सदर मोहम्मद सरवर की सरबराही में पुलिस को मुलजिम जाहिद की गिरफ्तारी का टारगेट दे दिया गया है। पुलिस ने छापे मारते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। DPO तारिक अजीज सिंधु ने बुरसा को मुकम्मल इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी करवाई है। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश शुरू कर दी है। चिलियोट से DPO अब्दुल्ला अहमद की हिदायत पर ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन DSP ट्रैफिक आदनान ज़हूर की ज़ेर निगरानी ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस की माजून की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। गुज़श्ता माह जून में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 7300 से ज़ायद चालान, 39 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने 225 ओवर स्पीड, 1855 ओवरडोजिंग और गफलत लापरवाही पर 183 गाड़ियों के चालान किए। गुज़श्ता माह 912 कम उम्र ड्राइवरों, 342 बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। माह जून में ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग करने पर 1181 चालान में भारी जुर्माना भी वसूल किया गया। लाइन और लेन की खिलाफ वर्जी पर 1427 गाड़ियों, प्रॉपर लाइट्स के बगैर 316 गाड़ियों के चालान किए गए। गुज़श्ता माह जून में गफलत लापरवाही से ड्राइविंग करने पर 7 ड्राइवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। शहरियों के सफ़र को महफूज बनाने के लिए अमली हिकमत अमली को यकीनी बनाया जा रहा है। DPO अब्दुल्ला अहमद ट्रैफिक की रोकथाम के लिए कार्रवाई के साथ आगाही मुहिम का सिलसिला भी जारी है। ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट की जानिब मुख्तलिफ तालीमी इदारों में जाकर ट्रैफिक कवानीन से आगाही दी जा रही है।
ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके ट्रैफिक हादसात से बचा जा सकता है। लहियानी में म्यूनसिपल कमेटी और महकमा इरीगेशन के नाहली किसी बड़े साने की मुंतज़िर अरसा दराज से लहियानी की मेन सीवरेज के नाला की सफाई ना हो सकी। मेन सीवरेज के नाला की सफाई न होने की वजह से मुतअद्दिद बार सीवरेज का गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। नकास नाला की सफाई न होने की वजह से ज़मींदारों की फसलें भी कई बार तबाह होने के बावजूद इंतज़ामिया ने किसी किस्म का एक्शन न लिया। मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू होने को है। सीवरेज के पानी के नकास ताले की बंद होने की वजह से लोगों के मकानात गिरने के साथ साथ दीगर नुकसान होने का भी खदशा है। DCO कसूर म्यूनसिपल कमेटी मुस्तफ़ाबाद और महकमा इरीगेशन को अहल इलाका ने मुतअद्दिद बार बावर कराया, लेकिन इंतज़ामी की जानिब से किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना हो सकी। अहल इलाका ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ननकाना साहब में तेज़ बारिश की वजह से सीवरेज की निकासी को बहाल रखने के लिए ननकाना साहब म्यूनसिपल कमेटी का अमला मुतहरिक है। ननकाना साहब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद की हिदायत पर म्यूनसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर राव अनवर ने मानसून बारिशों के अवसरात पर काबू पाया है। सुबह सवेरे गहरे स्याह बादलों ने तेज़ हवाओं के साथ जमकर बारिश बरसाई। म्यूनसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर राव अनवर अपने अमले के हमरा फील्ड में मुतहरिक ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे हैं। नशीबी इलाकों से पानी को निकालने के लिए मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। मेन शाहराहों से पानी और सफाई के इंतजाम को बाखूब सर अंजाम दिया गया है। मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान की फिजा कायम रखने और शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुजरात पुलिस के दस्तों ने शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर फ्लैग मार्च किया है। DPO गुजरात मुस्तनसर अता बाजवा ने इस मौके पर अपने पैगाम में कहा कि शहरियों की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। मुहर्रम उल हराम के मौके पर जिला भर में अमन व अमान कायम रखने के लिए गुजरात पुलिस पूरी तरह से मुतहरिक है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी का यौम सियाह अंग्रेज़ के खिलाफ आज पीपल्स पार्टी के 46 यौम सियाह मना रहे हैं। मई 1977 को जनरल ज़िया हक ने 5 जुल्फ़कार अली भुट्टी को अवामी हुकूमत का तख्ता उलटा था। पीपल्स पार्टी के जालों ने रज़ाए मुस्तफ़ा चौक तक रैली निकाली। कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक थी। पीपल्स पार्टी को ददारान और कारकुनान की ज़िया उल हक के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अदालत आलिया में साबित हो गया कि जुल्फ़कार अली भुट्टी को फांसी की सज़ा गलत दी गई थी। बोरेवाला में पेट्रोल पंप मालिकान का पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की हड़ताल का मामला। शहर के मुख्त पेशतर पेट्रोल पंप्स और मामूल के मुताबिक पेट्रोल की फ़रोख्त जारी है। ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक जारी है। हमें हड़ताल के बारे में कोई हिदायत नहीं मिली। पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने फाइनेंस बिल में 0.5% एडवांस टर्न और ओवर टैक्स लगाने के खिलाफ आज से मुल्क की हड़ताल का ऐलान किया था। खानवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर वॉइस न्यूज़ शेख सुहेल। खानवाल मेन मरकजी कब्रिस्तान में नशेइयों ने टेढ़ जमा ली है। अहल इलाका सरापा एहतजाज। नशेई कब्रिस्तान में खंबे और पानी के नलके ले उड़े। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर वॉइस न्यूज़ शेख सुहेल। जी सुहेल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मेन मरकजी कब्रिस्तान खानेवाल में, जहाँ पर इस कब्रिस्तान की बात की जाए तो इस कब्रिस्तान में 8 से 10 नलके लगे हुए थे जो चोरों ने चुरा लिए हैं। यहाँ पर मंशियात फरोश रहते हैं और जो मंशियात का नशा करते हैं वो लोग यहाँ पर रहते हैं। वो नलके और खंबे चुरा कर ले गए। इनके साथ ही कब्रिस्तान के साथ ही उनका जो है रिहाइश है। तो उनसे जानेंगे, भाई बताइएगा क्या हुआ है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? हम DCO खानेवाल और DPO खानेवाल से अपील करते हैं कि ये एक तो सबसे बड़ी बात कि खानेवाल कब्रिस्तान को इसको सिक्योरिटी फराम की जाए और जो चोर हैं यहाँ पर उनके खिलाफ तफ्तीश कराई जाए। और ये जो नलके लगे हुए हैं ये हमारे उन चोरों से नलके वापस मंगवा के नलके हमारे जो कब्रिस्तान के अंदर दोबारा लगवाए जाएँ और जो चोर हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। अच्छा भाई, ये बताइएगा आप क्या समझते हैं कि ये मंशियात फरोश हैं, ये मंशियात पीने वाले, किन्होंने, किसकी ये काम है? क्या ये मंशियात फरोशों का ही काम है जी, ये उनके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। ये उन्होंने ही निकलवाए। हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर चोरी हुए। क्योंकि मैं पिछले हफ्ते आया था, मैंने खुद ने इस्तेमाल करा था। ये यहाँ पे ना नलका लगा हुआ था, मैंने खुद ने कब्र के ऊपर पानी डाला था तो लगा हुआ था। अब आया हूँ, कल परसों आया था मैं, नलका नहीं लगा हुआ था। तब परेशानी होएगी जी, तंगी होएगी। 7-8 नलके लगे हुए थे जो इस एरिया में लगे हुए थे। आपको हमने जगह दिखाई है, उधर दिखाई है, 4-5 नलके तो यही हैं एरिया के। अब कितनी परेशानी होएगी मुहर्रम के दौरान, जो लोग इतनी दूर दूर से आएंगे वो पानी थोड़ी अपने साथ लेकर आएंगे। कितनी मुसीबत। आप किससे मुतालबा करते हैं, क्या कहेंगे भाई?
हम डीपीओ खानेवाल से और डीसीओ खानेवाल से मुतालबा करते हैं कि वो यहाँ पे एक तो सिक्योरिटी फराम की जाए, और नशई भी हैं और नशइयों के अलावा भी यहाँ पर चोर हैं जो यहाँ से खंबे भी काटते हैं और नलके भी उतार कर ले गए हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि मोहम्मद अली बुखारी साहब जो खानेवाल में काम करवा रहे हैं, वो भी इस कब्रिस्तान के अंदर जो है ना जी नलके लगवाएं, ताकि जो मंशियात फरोश और जो मंशियात पीने वाले लोग हैं वो नलके ले जा चुके हैं, वो नलके लगें। और मुहर्रम नज़दीक है, लोगों ने अपने प्यारों की कब्रों पे आकर कब्रें भी लिपवानी है, पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी। जी सुहेल, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी पंजाब का वफ्द चेयरमैन मर्कजी रोहित हलाल कमेटी पाकिस्तान सफ़ीर मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद इमाम बादशाही मस्जिद लाहौर की क़यादत में डिवीजनल सतह पर बहावलपुर में इजलास की सदारत की है। इजलास में कमिश्नर बहावलपुर डबेर नादिर चट्टा, RPO राय बाबर और दीगर इजलास से डिप्टी कमिश्नर, DPO और पुलिस अफसरान समेत तमाम मकातब फ़िक्र के मकामी उलमाए कराम और अमन कमेटियों के मेम्बरान ने भरपूर शिरकत की है। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और पैगाम पाकिस्तान का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद क़याम अमन के लिए उलमा का भरपूर तावन हुकूमत और सिक्योरिटी दारों और इंतज़ामिया के साथ है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद मुहर्रम उल हराम में अमन के फ़रोग़ के लिए तमाम उलमा को अपना कलीदी किरदार अदा करना होगा। सफ़ीर अमन मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद उलमा और ज़ाकिरीन अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ की फ़िज़ा को कायम रखें, इश्तियाल अंगेज़ तकारीर से गुरेज़ करें। हुकूमत और अफ़वाज पाकिस्तान, सिक्योरिटी दारों और पुलिस का किरदार मुल्क में अमन अमान के हवाले से काबिल तहसीन है। दिफ़ा पाकिस्तान के हवाले से वतन अज़ीज़ के लिए अफ़वाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ बेमिसाल है। अजलास में तमाम मसालिक के उलमाए कराम ने इंतज़ामिया को अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। इजलास में अशूरा मुहर्रम उल हराम में अमन अमान के हवाले से इंतज़ामात और मसाइल हालात पर बातचीत की गई है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उस्ता मोहम्मद के मेयर और चीफ ऑफिसर की उस्ता मोहम्मद प्रेस क्लब का दौरा किया है। मेयर मोहम्मद मुजफ्फर खान जमाली और चीफ ऑफिसर मोहम्मद अली सातक ज़ई ने प्रेस क्लब बिल्डिंग का मुआयना करके मौका पर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रेस क्लब उस्ता मोहम्मद की बिल्डिंग की तज़य्युन और आइश और बेहतरी हम सब की जिम्मेदारी है। बिल्डिंग के हवाले से दरपेश मसाइल को हल करने की यकीन दहानी करवाई गई है। उस्ता मोहम्मद के सहाफ़ियों ने हमेशा शहर के मसाइल की निशानदही करवाई, जो हल करने में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उस्ता मोहम्मद ने अपना किरदार अदा किया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि खानपुर में पाकिस्तान मर्कज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों में नाजायज़ इजाफे के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई है। एहतजाजी रैली न्यू सब्जी मंडी से प्रेस क्लब तक निकाली गई। रैली में शरीक एहतजाजी अफराद का कहना है कि कौम से 200 से 300 यूनिट फ्री का झूठा वादा करने वालों को हम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दिया गया है। बिजली गैस के बिलों ने गरीब आवाम को कर्ज लेने और जेवर भेजने पर मजबूर कर दिया गया है। और इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहे वॉइस न्यूज़।